First of all, good evening, everyone. Those who have joined this, not a webinar, but a kind of an interactive session. Correct. And yeah, so basically, my education started from MSc Maharaja, the Maharaja Sarjirao University of Vadodara. Firstly, I was into for going for medical, going for doctor line into NEET. But how somehow the things destiny changes. Yeah, every all the question we answer. So basically now I finished my master from Maharaja Sarjit in grade MSc in cellular biology, and I did my MSc dissertation from Institute of Science on immunology. And so after post my MS, I did join IFA in 6 months. In MSU, they conduct some crash course for clearing the net and all such kind of exams. मेरा साउंड इको कर रहा है क्या? थोड़ा सा अपना लैपटॉप का माइक लैपटॉप स्पीकर लैपटॉप का मोबाइल का स्पीकर ऑफ कर दो बस देन इट विल बी बेटर मोबाइल का ऑफ कर दो. बस नाउ इट्स फाइन Okay, just a second, just a second. Just a minute. Wait for a second. That I, that I finished. Yes. Few people have raised hands. Maybe you can raise hands after I finish my speaking. Yeah. So basically, uh, after I did finish my masters, I went on to pursuing. Means I started preparation for CSIR net with help of MSc, and they conduct some crash course for which is sponsored by GSPTM for clearing CSIR and all such kind of exams. So I did give that, and in that time I very 96%. So I have IFPS coaching through online, and the classes was around 8 a.m. to 2 p.m. And after that, the very uh, less rude questions come when you are from a middle class family कि MSc के बाद क्या करना है. So you cannot sit at home. So I started teaching around 11, 12 students to as biology, teaching them, and which enhanced my concepts and aptitude skills as well. So with the ISS coaching, I tried to clear, and similarly, I had already given my MSc previous year with All India rank 329. So that I was having. So through that, I got calls from IIT Bombay, IIT Madras, IIT Roorkee, then Delhi University. So I went for the interviews. At some places, I cleared till final round. But when the PI asked me that, do you have JRF? Yes, I have JRF. They simply tell me, can, although you have everything, but we can, because I don't have. So while I was traveling for TU, I got to know about this BARC JRF program on itself and TU only. And after 6 months, I got the call for interview. And so the BARC interview, the thing is that only single round of interview will take place. And it will be a round of 2.5 hours or
मिनिमम 1 घंटा तो चलेगा ही इंटरव्यू आपका. बाकी इन अदर प्लेसेस इट्स लाइक 10 to 15 minutes of interview or 20 minutes, that's it. In bar, only one round, not many rounds. One round interview of that to 1.5 hour. Five scientists will be, 5 to 6 scientists will be there of different fields, plant, then molecular biology, immunology. So कर in दूँ मैं bar, शुरू कर दूँ. basically we work on mostly radiation, biology radiation तो रहना ही रहना है. रेडिएशन के बिना बार में काम होगा नहीं. So my work is on basically radio protection. Radio protection in the sense how we can protect our body from if we have got exposure from radiation like gamma rays or X-rays. So now focusing on 5 years. So क्या है DRC? So first on time you get work-life balance is there. In DRC you can work 8 a.m. to 8 p.m. only. And if you want to work in on Saturdays and Sundays, you have to create some great pass like the thing. So for that, recently PI advice, PR, all the scientists advise that you should avoid working in so that Saturday, Sunday you can use for your own reading purposes and all, but you can do the work on Saturday, Sunday as well. It is not that strict as well. And in BRC, we are not allowed our with our phones. So, so the full concentration is there. You don't use any social media in your work time. But here in other labs, it is there. We make reels, Karana, Demkana, etc., etc. And here the main thing, which is advantage, there is one-to-one guidance. So one PI will have maximum 2 or 3 students. So which is really a very good thing, so that the PI can fully focus on you and your experiments. And some of the PIs they help their students in their experiments, like working really on bench on. So one of my PI, who is a scientific officer E, he really helps me in my injection for the animals and all. So you can understand. And when I joined the lab, he only showed me how to do cell culture, how to do animal work by working himself. So imagine if such great scientists show you, and what will be your skill set will be really very. I will be getting the top notch facilities. So in Bharat JRF program, they have around 30 seats, 30 to 35 seats, and around 800 applications come all over India, and they select out of 800 they select around 200 up to 300 students. And the main thing is that you should have chemistry in your bachelor's, chemistry as a subject, chemistry as a paper in your bachelor's or master's. Basically, but I see it in bachelor's as well. And you should have any one national exam qualified, which is GATE, DBT-JRF, CSR, JRF, GG Any one exam you should have, you have to qualify. CSR net LS won't work, neither ASRB net LS, ASRB net will work. You have to get a JRF. Any JRF exam would suffice. And the main thing is that the stipend comes on every time, comes on time. You don't have to wait for 1 month or 2 months. Yeah, and you will get a CHS facility in bar that some amount, 1% of your salary will be deducted, and you can get a complimentary health scheme in which you can show whatever happens. Any medical issues happen, you can go and visit the doctor at free of cost. And the hostels are very rarely even. In hostel, you get single occupancy, and you have attached washroom as well. And the kind of fees in suppose in other institutes there are semester fees and all such kind of thing. In BRC
अच्छा, हिंदी यूज करना है क्या? दोनों दोनों। वर्ड प्लीज इतना रिप्लाई करिए कि नो इसमें नो, कम वी बने। हम लोग दोनों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट हैं। सो वी विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के। क्या सब कोई एग्री है ना? हाँ जी, ओके ठीक है। बढ़िया, तो हम तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के। वी आर लिखो। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन से ऐसा करेंगे, क्वेश्चंस हम लोग एक बार बाद में ले लेते हैं। जो बेसिक डिटेल्स आपको बतानी है, दैट विल कवर फर्स्ट, एंड वंस विल tell them about IIT JAM and CSIR GATB. Then after that we'll start taking questions one by one. Hope so that will be fine. या Okay, please continue. Yeah. So in BRC, there is no fees as of now. Only you have to give enrollment fees of that is rupees of 10,000, which will be refunded from your contingency money. So your contingency amount in BRC is around 6,000 per year. Radio. So the amount, the financials is also very great here. And so basically अब हम बात करते हैं कि क्या होता है बीआरसी की पीएचडी के टाइम पे। बीआरसी में जब पीएचडी आप एंटर करते हो तो सबसे पहले आपकी पीएचडी सेमिनार होता है। एंड आपको जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि आपका कोर्स वर्क जो है एंड लैब वर्क जो है वो भी साथ साथ में चलेगा। बट बीआरसी में क्या कोर्स वर्क आपका 4 महीने का रहता है, वो आपको पहले ही खत्म करा देते हैं। एंड जो आपको जो प्रोजेक्ट अलॉटमेंट होगा, आपको खुद से अपना प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं करना है कि खुद से सिनॉप्सिस बनाया खुद से नहीं। पहले ही प्री डिसाइडेड प्रोजेक्ट्स रहते हैं साइंटिस्ट के अंदर, आपको साइंटिस्ट से मिलना है, बात करना है। एंड जो प्रोजेक्ट डिसाइड होंगे वो आपकी एडमिशन के टाइम पे जो इंटरव्यू के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पर आपकी प्रोजेक्ट डिसाइड वो मैं कहूँ। तो मुझे आगे P120 clear my loud now. Very yes, clear now. 1 2 3 4. Okay. So सो जो आपकी प्रोजेक्ट्स आपको डिसाइड होंगे वो आपकी जो 30 एडमिशन के टाइम पे मेरिट लिस्ट बनेगी उस हिसाब से आपकी प्रोजेक्ट डिसाइड होती है। सपोज मैं फर्स्ट नंबर हूँ तो और 30 स्टूडेंट्स है तो 30 प्रोजेक्ट्स फ्लोट होंगे, तो आई विल हैव ऑल 30 ऑप्शंस बट आई कैन सिलेक्ट ओनली 2। तो इट्स N+1 rule. So because I can get any of the projects. Similarly, if the second person is there, he will have to select 3 projects. Similarly, third student is there, he will have to submit 4 projects of his choice, the top 4 projects. अब आपने प्रोजेक्ट चूज चूज वगैरह कर लिया? नो, we will come to it regarding OCS. So the thing which is I am talking about, this is the BARC JRF program. They have launched their own JRF, and this year also it will be coming soon in I guess March में application आएगा। And no, by yes 30 what. So no, for interview they select around 200 students. Out of that they select 30 students, and some 10 to 14 waitlist students. So first you will, if the top 30 students won't
confirm, then the waitlist students will get the opportunity of that. Yes. Now coming to BARC OCS program, the flagship program of BRC, and it's highly competitive exam because in bioscience, any of the subjects you get higher maximum to maximum of 10 seats. And the thing is that first you have to clear their written round, and clearing the written round is a bit kind of bit headache. The syllabus is same as CSIR, but the question levels are really very tricky. They are not tough, but they are very conceptual. And when you go for OCS interview, it goes for around 2.5 hours. Again, the same thing, but here it changes. You have to be have master over 5 units, and yes, in OCS you have to clear first written round, then only will be eligible for interview. In BARC JRF there is no written round. You have to clear only national JRF exam. This is the main difference. The work culture, the kind of scientific work, what scientific officers do and what we do, it is the same. But in BARC OCS, you will get a permanent employment, and there are additional add-on benefits like after some time, you will get your home or flat on Shakti Nagar, depending on your position, depending on your rank, you will get the allotment of different flats. So Anushakti Nagar campus is again again a vibe in itself. So there is a lot of greenery and all. So you might be amazed that since in BRC, no personal electronics, no personal mobile is allowed, then how I am talking with you. So the thing is now our lab has been shifted to, yes, through BRC. No, earlier they were taking PhD students through BARC OCS program, but now they have stopped and they have started their own BARC JRF program to take the PhD students, and that is even good. Now the process has been more streamlined. That uh, yeah, suppose if you have given, the thing is that I will tell you that you give both BARC OCS and BARC JRF thing, but suppose you get BARC OCS and simultaneously you get qualified for BARC JRF, then you can go for say simple for BARC OCS because it is even more prestigious. So in BARC OCS, in first year will be considered as trainee scientific officers, where you will taught all kinds of subjects, and the projects or the placement you will get on the basis of your marks which you score in the TSO tests and interview as well. So on that basis, the merit list will be created, and be on the behalf of that, you will get your placement. So mm, now the thing is how to clear the other competitive exams apart from like CSIR JRF, DBT JRF, ICMR JRF. So I would for rather I have cleared my CSIR JRF exam and DBT JRF category 2. So I would be focusing more on that rather than ICMR JRF. So for CSIR JRF, what we do is
we first lose our concentration in our masters year because अब तो मास्टर्स में आ गए, अब तो हम बड़े हो गए ऐसा लगता है, तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं। हम क्लास 12 11 12 में 12 13 घंटे पढ़ते थे, बट हम मास्टर्स में उतना कभी नहीं पढ़े। उतना पढ़ना पड़ेगा, 12 13 घंटे, ना तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं काम चलेगा। एंड दूसरा, the main thing which we have, which is creating problem for not qualifying CSR, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि हम नहीं क्वालिफाई कर सकते, बट जो डिस्ट्रैक्टिंग थिंग है वो है ये हाथ में जो मोबाइल हम पकड़े हुए हैं ना, इस पे इंस्टाग्राम फलाना ढिमकाना रील सब, अपना स्क्रीन टाइम चेक करना, 4 से 5 घंटा ऐसे ही स्क्रीन टाइम। दूसरी चीज है, हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है कि आज तो हम पढ़ेंगे, पढ़ के तो चला देंगे, 3 4 दिन है बस। आज हमने स्टडी टाइम टेबल बनाया, टेबल वेबल अच्छे से चमका दिया, 1 घंटा 2 घंटा सीरियसली पढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा बहुत तो कर 1 हफ्ता पढ़ेंगे। मेरे साथ भी होता है, आई एम ऑल्सो द वन, सो सबके साथ होता है, वो हमें बदलना पड़ेगा अपनी। एंड वी नो हम गलत करते हैं, कभी हम सही नहीं कर पाते। ग्रेट ना, अब पढ़ना क्या है CSIR के लिए, तो हम आई आई completely focused on maximum 8 units। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मुझे नहीं आती है, ठीक है, मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी छुआ भी नहीं था। तो यहाँ पे सी इन CSIR the paper pattern is that out of 75 questions you have to attempt only 25। अब मान लो 4 यूनिट या 6 यूनिट, हम 8 यूनिट पकड़ के चलते हैं, और पर यूनिट 4 क्वेश्चन मान लो आप, 8 चौको 32 हो गया एटलीस्ट, और या 5 क्वेश्चन भी आता है 8 यूनिट से, मेरे पढ़े हुए 8 यूनिट से, आई हैव 40 क्वेश्चंस विच आई कैन अटेम्प्ट, एंड आउट ऑफ 40 आई हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25। नाउ पार्ट बी तो सब लोग, वो तो रटने वाला होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने पार्ट पार्ट सी की पहले बात कर लेते, दैट इज वेरी लॉजिकल। सो उसमें क्वेश्चंस जो है ना बहुत टफ नहीं होंगे, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ, लेकिन हम ये डर जाते हैं कि पार्ट सी बहुत टफ है, बट पार्ट सी इज नॉट टफ, इट्स लॉजिकल एंड लेंथी। So if you attempt your part C first, what I do, it's my strategy that I finish part C first because I'm more comfortable with logical based question rather than cramming based question. So अगर part C आपका अच्छा है तो obvious सी बात है you will get grade C। आप confident रहो ना कि आपको तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आते हैं, तो आपने अगर सही सही अटेम्प्ट किया है सब चीज पढ़ के, कहाँ से नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग के मेरी जो स्ट्रेटेजी, और आई नो माय पार्ट बी सेक्शन द क्रैमिंग बेस्ड इज वीक, सो आई अटेम्प्टेड अराउंड, हमें 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, अब जरूरी नहीं कि मैं 35 करने जाऊं, मैंने 28 ही की। And now the comes the rank maker, which is the aptitude section। एप्टीट्यूड सेक्शन आधे लोग मैथमेटिक्स से डर के भाग जाते हैं कि मैथमेटिक्स होगा, कैलकुलेशन होगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ जिंदगी में आपका मैथमेटिक्स से पीछा कभी नहीं छूटेगा। आपको घूम फिर के आपका मैथमेटिक्स आपको पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी PhD में भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होगी होगी, और आपको कैलकुलेशन में भी मैथमेटिक्स यूज करना ही करना है। तो बिना मैथमेटिक्स के
आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये मत सोच कि हम मैथमेटिक्स छोड़ देंगे तो कुछ हो पाएगा। लॉजिकल रीजनिंग आपको एप्टीट्यूड आपका अच्छा करना ही होगा सीएसआईआर के लिए, क्योंकि हम गलती वहां कर देते हैं बच्चे लोग कि वो अपना एप्टीट्यूड पोर्शन ही छोड़ देते हैं। एप्टीट्यूड पोर्शन गया, थोड़ा बहुत बायोलॉजी से आया, 150 नंबर, 100 नंबर, जेआरएफ मिलने के लिए आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो जाएगा तो जेआरएफ मिल जाएगा। तो 120 चाहिए होती है। तब वो कितने 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 10 में से अगर 10 भी सही है, 8 भी सही है, यू आर गेटिंग 8 मार्क्स विच कॉन्ट्रीब्यूट। नेगेटिव मार्किंग तो भैया हर एग्जाम में होती है, कौन से एग्जाम में नहीं होती। आप ऐसे क्वेश्चन, आप सी कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, पहले ही बोल रहा। या तो पढ़ा हुआ होता है या तो नहीं पढ़ा। हम अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखें कि हमें नेगेटिव मार्किंग से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो ये इतने आपको अटेम्प्ट ही क्यों करने हैं, और अपनी तैयारी इतनी अच्छी। और ये नेगेटिव मार्क कौन से वाले क्वेश्चन करते हैं पता है? ये हमें वही करा क्वेश्चन करा जिसमें हम इनको ऑप्शन में कंफ्यूजन। हाँ, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। और ये कब होता है? जब हमारी तैयार हमने, जब हम कैसे पढ़ाई किया हो, जब हमने सिर्फ पन्ना पलटा हो ए, और हमारा रिवीजन नहीं हो। एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं होती ये चीजें बायोलॉजी में, आपको अपना रिवीजन करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। निमोनिक्स बनाओ याद रखने के लिए। तो सपोज जो टी सेल के मार्कर्स होते हैं, CD7, CD9, CD63, ये मैंने ऐसे याद किया, 9 7 63 हो गया, CD9, CD7, CD63। So now I will never forget। जैसे आपको अपने निमोनिक्स बनाने पड़े एंड लिख के पढ़ो। जितना आप लिख के पढ़ोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट होगा। Got it? Yes. So I am done from my end। किसी को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन गो अहेड। तो हम लोग क्वेश्चन सेशन लेते हैं कुछ देर में। फिलहाल थैंक यू सोमिलिया फॉर योर informative talk and hope all of them have get benefited of this. So basically बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता कि JRF बार का अलग से भी है, मतलब PhD पोजीशंस। और अभी तो OCS और DGFS ने पूरा, DGF फॉर बायोसाइंस, DGFS इज फॉर इंजीनियरिंग हाँ हाँ ग्रेजुएट्स। मैं बता रहा हूँ, तो वो कंफ्यूज। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि बार्क में ये दो एग्ज़ाम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और जो DGFS होता है मास्टर्स के लिए होता है, और वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स या मैथमेटिक्स या फिजिक्स इस तरह के बैकग्राउंड्स में। और OCS जो है PhD के लिए है, और हमारे बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए भी है, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लिए भी है। एक एक करके हम लोग सारी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही होगी आपको। ठीक, स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes। ओके फाइन। तो स्लाइड शेयर, ओके ठीक है। तो इसमें मैं जो चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, हालांकि जो एक्सपीरियंस है बार का, इंटरव्यू से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होंगे है ना, और लाइफ स्टाइल, पैसे कब आते हैं,
जीआरएफ कितनी क्या मिलती है ना, और भी तमाम तरह के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं जो मेरे दिमाग में भी नहीं है। वो सारी चीज़ें हम लोग आपके क्वेश्चन एक एक करके लेंगे, और बहुत सारी चीज़ें सोमेलिया ने अभी कवर कर लिए हैं। फिर से हम लोग उस चीज़ों को आपके क्वेश्चन के थ्रू लेंगे। मैं जो कवर करने वाला हूँ वो IIT JAM की बेसिक चीज़ें, कि क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और अभी कम समय में कैसे आप उसको प्रिपेयर करोगे। ठीक है, गैट भी और बार को CS के बारे में, प्लस CSIR के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं इससे आप बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस में, और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जैसे गेट की परीक्षा आप देते हो तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आप जा सकते हो। जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो गेट की परीक्षा से भी एडमिशन लेते हैं। ठीक है, इसको भी प्रायोरिटीज़ दी जाती है। और IIT IISc बैंक और आइसर जैसी एग्ज़ाम जो कॉलेजेस है इससे आपको एडमिशन मिलेगी। कैरियर पाथ में PhD कर सकते हो, या फिर पब्लिक सेक्टर में जा सकते हो, या फिर इंडस्ट्री में जा सकते हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों में आप जा सकते हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको बनती है, जैसे जो आपको JRF मिलता है। मैं कहाँ गया पेन शायद, हाँ, तो आपको जो JRF मिलता है उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, और JRF आपको सिर्फ 5 साल के लिए होता है जब से आपने इनरोलमेंट किया है। फिर जैसे OCS है, OCS का ऑलरेडी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है यूट्यूब चैनल पे, अब से बैठा है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको जाके देखोगे अच्छे से कि कंप्लीट उसमें कितने जैसे पेमेंट मिलती है, कब मिलती है, साइंटिफिक पोजीशन, साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन कैसे एश्योर्ड होती है। ऐसा नहीं कि OCS में आपने एडमिशन ले लिया और भगवान करे हो जाए तो आपकी जॉब कंफर्म है, उसके बाद भी वो आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको रखते हैं, या फिर आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। IIT JAM के जो पेपर्स होते हैं इन सारे सब्जेक्ट में होते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेज क्या लेना चाहिए आपको, तो मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी जा सकते हो। बट दोनों एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़, एक जैसे कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है IIT JAM की, वो वैसे मैं ये सारी वीडियो डाल चुका हूँ, ये सारी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हो। जैसे मैं 3 एग्ज़ाम का कंक्लूज़न अभी दे रहा हूँ, बट कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हो। ठीक, और हमारे जो साईकॉम कम्युनिटी है, जो हमारे सोमेलिया जी चलाते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सोमेलिया इट्स साईकॉम ओनली ना? Talk about that later on. First, to finish it. ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है IIT JAM की, वो मिनिमम 55% है, और SC ST PWD के लिए 50% है। एग्ज़ाम जो होता है CBT मोड में होगा, 3 घंटे का होता है, और टिपिकली फरवरी में होने वाला है। मार्किंग स्कीम जो है टोटल 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो न्यूमेरिकल इंटीजर वाले क्वेश्चन हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन को 3 भागों में बांटा है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, जिसमें सेक्शन A में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 1 से 2 मार्क्स के हो सकते हैं। सेक्शन B में 10 क्वेश्चन MSQ टाइप होंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है टोटल 20 होंगे, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 1 से 2 मार्क्स के होंगे। तो बेसिकली जब आप अपने क्वेश्चंस का पैटर्न करते हो तो यहाँ पे बच्चे डर जाते हैं इन 2 चीज़ों से। उनको लगता है कि केमिस्ट्री, कहाँ गया पेन, हाँ, सो डरते हैं केमिस्ट्री से। ठीक, केमिस्ट्री पूछेगा, मैथ्स पूछेगा, इन सारी चीज़ों से।
लेकिन ऐसा मत सोचो कि सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें आती है। जितना आप डर रहे हो बाकी सब भी उतना ही डरते हैं इन सारे सब्जेक्ट से। तो आपका जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो पेपर है ना, उसको आप बहुत स्ट्रांग करो। फिर आप प्रायोरिटी दो केमिस्ट्री को। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को अगर कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गैट बी की बात करते हैं। तो गैट बी जो होता है अभी अप्रैल के टाइम में उसका वापस एग्ज़ाम होगा। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। और इसके जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन किए गए हैं मास्टर्स के लिए। आईआईटी जैम का भी एग्ज़ाम मास्टर्स के लिए है। और वैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज यहाँ पे दे नहीं रहे, बट मास्टर्स के लिए ये प्रोग्राम है। कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी बच्चा जो जैसे बोटनी जोलॉजी से अगर जिसने बैचलर्स किया है, जिसने भी बीएससी किया है बैचलर्स, या फिर जैसे नर्सिंग वाले जो भी बच्चे हैं, नर्सिंग के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जोलॉजी बोटनी बायोलॉजिकल फील्ड के कोई भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ लाइफ साइंस और बायोटेक यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी और भी फील्ड्स हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए होता है 55% चाहिए होता है। और मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर्स में। और फाइनल ईयर स्टूडेंट जो होते हैं वो एलिजिबल होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट एडमिशन के टाइम तक आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और आपको डिग्री बाद में भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए एडमिशन के टाइम तक, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम मोड वही सीबीटी टाइप होगा, 2 घंटे का होगा। और क्वेश्चन किसके बेस पे होता है, जैसे कि सी एस आई आर यूजीसी के लेवल का यहाँ पे एकदम नहीं होता, उतना टफ नहीं होता। लेकिन जो सी एस आई आर का जो बी सेक्शन है, जो बी सेक्शन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने उसको पढ़ लिया, उसके सारे प्रीवियस ईयर बना लिए, उस तरह उस लेवल की अगर आपने उसको तैयारी कर ली ना, तो फिर आपके लिए इजी रहेगा, आप वो आराम से वो कर पाओगे। ठीक है। नाउ हम लोग बात करते हैं किसकी। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ये नेक्स्ट जो है सिलेबस की। तो सिलेबस बेसिकली जो आईआईटी जैम का केमिस्ट्री फिजिक्स है उसको हटा के बाकी जो बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड है, जैसे मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक, और बायो प्रोसेसिंग है, एनिमल और प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी से है, बायोकाइनेटिक्स से हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे बच्चे बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग से डरते हैं, मतलब क्योंकि वो शायद जोलॉजी या बोटनी या किसी और बैकग्राउंड से जिन्होंने इस पर कभी लुक ओवर नहीं किया। ठीक। बट अगेन किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सारा 100% सिलेबस आपको आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उसके 75% सिलेबस को कवर करो, 75% से 80% का सिलेबस आप कवर करो, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। क्योंकि सारे एग्ज़ाम में बायो प्रोसेस आप कर पाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो भी आपको बहुत टफ है या जो आपका पढ़ा हुआ बहुत स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो, और जो नहीं पढ़ा हुआ है या आपको बहुत टफ लग रहा है अगर उसको छोड़ सकते हो तो आप उसको छोड़ दो, बट कोशिश करो कि 80% आप सिलेबस आप कवर कर लो उसका। मार्किंग सिस्टम, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए विद नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स कितने? 200 मार्क्स के ये एग्ज़ाम है। बार के बारे में बहुत चीज़ें सोमले जी ने बता दी हैं, तो मैं इसको रहने देता हूँ। बाकी थोड़ी सी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी भी कोई सिलेबस नहीं दिखता, ठीक है, ये छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। बार्क में यू नेवर गेट द सिलेबस फॉर द बार्क, यू नेवर गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
and you don't know how to prepare, how much like what is the way and what to read. So reading के लिए again I prefer कि if you have idea about little bit general aptitude, थोड़ा बहुत जनरल एप्टीट्यूड आपका आना चाहिए, और अगेन CSIR UGC का जो बी सेक्शन है उसकी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए. अगर उतना कर पा रहे हो देन इट विल बी इजी टू क्रैक द बार को CS. एंड फॉर द इंटरव्यू thing, I didn't attempt the bar COCS interview, but whatever the interview I attempted for the like PhD and I qualified like IIT Bombay and then CCMB, IIT Delhi, then IIT BHU, NCCS Pune, and one more that RGCB. So in this all, in some other institute which I didn't qualify, that there are some institute जहाँ पे मैं qualified नहीं भी हुआ, जैसे RCB, और भी बहुत सारे थे जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुआ. तो जिसमें क्वालिफाई हुआ, जिसमें क्वालिफाई नहीं हुआ, उसमें एक मेजर मैंने डिफरेंस खुद को एनालाइज किया कि जिसमें भी मैं क्वालिफाई हुआ वहाँ पे मैं मतलब ये सोच के मैं बैठता था एग्ज़ाम इंटरव्यू में कि मुझे ऑनेस्टी बरकरार रखनी, मुझे आएगा, मैं अच्छे से बताऊंगा, बेसिक स्किल बताना होता है, और अगर नहीं आएगा देन आई विल से कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा और मुझे मैं इसको जाके वापस देखूंगा. दैट्स थिंग. जहाँ पे भी आपके मन में डर आ गया कि इफ़ यू लूज समथिंग, दैट फियर लाइक डेफिनेटली मेक यू टू लूज. अगर आपको डर आ गया कि मैं लूज कर जाऊंगी, छोड़ जाऊंगी, डर जाऊंगी, नहीं हो पाएगा मुझसे, देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दैट. लेकिन अगर आपके पास है कि हाँ यार पूछेगा, आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप मन में रखने की इंटरव्यू में आपसे पहले तो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने की भी ज़रूरत नहीं. जैसे पर्सनल में कभी कभी किसी का गैप होता है, सो दे विल से कि मैं खाली बैठा हुआ था, दैट गिव्स द बैड इम्प्रेशन कि मैं बैठा हुआ था खाली. डोंट से सच काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, आप बोलो कि मैं पढ़ा रहा था, या फिर आप बोल दो कि मैंने ये कोर्स किए, प्रिपरेशन कर रहा था, देन आई केम टू हियर. सेकेंड थिंग, विच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क. जैसे ही आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे आपका रिज्यूमे उनके पास रहता है, सो दे विल आस्क योर डिजर्टेशन, या फिर आपने सपोज मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है, सो वो DNA रिपेयर से कुछ भी पूछ लेते हैं, यार पूछेंगे कि आप किस में कंफर्टेबल हो, तो वो वही पूछेंगे जो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है, या फिर जो जिस बैकग्राउंड से आप हो, या जिससे आपने डिजर्टेशन किया है. सेकंड जब वो क्वेश्चन मतलब जैसे जैसे आप बताते हो, तो सेकंड जब वो क्वेश्चन पूछते हैं उस बेसिस पे कि जिस ब्रांच में आप जा रहे हो, अगर आप बायोसेंसर्स में जा रहे हो, जैसे IIT दिल्ली में बायोसेंसर वाला ब्रांच था, ठीक है, बायोकेमिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है. तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जैसे अगर बायोसेंसर आपने बोला कि मुझे इंटरेस्ट है बायोसेंसर में, तो आपसे पूछेंगे डायरेक्टली कि अच्छा बताओ किस टाइप के बायोसेंसर्स आपने मार्केट्स में देखे हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है, और किस तरह से आपको कोई बायोसेंसर डिज़ाइन करना है तो कैसे डिज़ाइन करोगे, ठीक है. या फिर आपने बोल दिया कि सर मुझे कैंसर में इंटरेस्टेड है, तो दे विल आस्क कैंसर से. तो जो भी आप बोलोगे ना, अपना मुंह जो भी आप खोलोगे, दे विल पिक द क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली. दे आर नॉट गोइंग टू जज यू, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेलेक्ट यू. जो वहाँ पे इंटरव्यूअर बैठे होते हैं वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपको निकालने के लिए नहीं बैठे हुए हैं. तो वो देखते हैं कि जो भी आप बोल रहे हो वो आपको अच्छे से पता है कि नहीं. तो ये इंटरव्यू के बारे में थी. बाकी बात यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और आपके एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं. होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी और ये हेल्प करेंगे. बाकी जो वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप डिटेल में बार को CS हो, चाहे गैट भी हो, चाहे IIT जैम हो, उसको दे सकते हो. अगर आप IIT जैम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम लोग लाइव क्लासेस भी करा रहे हैं, या गैट भी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लाइव क्लासेस करा रहे हैं, उसको आप ज्वाइन करो. CSIR की बैच अभी हम लोग बनाएंगे, बट अभी IIT जैम और गैट प्रायोरिटी है.
you can join that classes. So कहाँ से join करने? In WhatsApp group will give you the all the information. If you have any doubt, you can ask one by one. So यहाँ पे मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ. आपको डाउट अगर माइक खोल के ओपन करके पूछना है, सो यू कैन रेज योर हैंड वन बाय वन और विल स्टार्ट द पिकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट. तो देखते हैं कि सॉरी चैट में क्या क्या क्वेश्चंस हैं. ओके नाउ मुझे लगता है कि यहाँ से आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिए थे. So Milena, I have told maximum information. You can connect me over LinkedIn or email. Okay, fine. Okay. Okay, then हाँ सर CSIR JRF से डायरेक्ट बार्क में जा सकते हैं विदाउट गिविंग बार्क. तो ये सोमिलिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका आंसर आप एक बार बता दो फिर से. So see, CSIR JRF, BARC JRF is completely different. BARC JRF program is the program through which BARC takes PhD students. The fellowship comes from DAE, Department of Atomic Energy. And CSIR JRF is important for, even though you click BARC JRF, CSIR JRF will be important because it will carry you marks when you apply for jobs like assistant professor and all such kind of things. Right? ओके आपका होप सो कि यू हैव नाउ क्लियर आइडिया अबाउट योर क्वेश्चन. आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो सोनी. I have a question actually. ओके गरिमा सिंह. So we'll take one by one question. Please you raise your hand if you want to turn on your mic, or you can text in chat box. So we'll directly read and answer. I have a question actually. Oh, to whom? Mohammed. Yes, you can ask. Please go ahead. No, so I want to get like which topic we have like for mark interview so that we can get the shape right. So this depends on your आपके डिपेंड करता है कि आप पे कौन से स्ट्रांग है. ये आप बता पाओगे कि आप कौन सा टॉपिक 6 से आता है वही आप चूज. एक आपकी पकड़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड आपको आपको वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा. Okay, sir, thank you. ओके यहाँ पे क्या पूछा किसी ने. सर आपने सेफ साइड के लिए कौन से टॉपिक बोलने चाहिए इंटरव्यू में. यार ये बताओगे सुमिलिया. सेफ साइड के लिए कौन सा टॉपिक भाई, ये सबका अलग अलग होगा. कंफर्टेबल जोन. नहीं मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप वही बोलो जो आपको पता है. अगर आप अपने सपोज कोई भी यस. और मतलब ऐसे नहीं कि हाँ मैंने डेजर्टेशन में सर को इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया कि सर मैंने XYZ काम किया. तो अगर आपने बोल दिया तो दे विल आस्क एंड दे विल टीयर यू लाइक धीरे धीरे करके वो चीरना शुरू करता है. पहली लेयर हटाएंगे फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर. जितना आप बताओगे उतना वो पूछेंगे और अच्छी भी बात है. बट ऐसा कोई सेफ साइड वाला टाइप का कुछ नहीं होता यार इंटरव्यू में. आप अपने डेजर्टेशन को अच्छे से पढ़ के जाओ. एक एक छोटी से छोटी चीज दे नेवर आस्किंग द बिग क्वेश्चंस. वो आपको साइंटिस्ट पोजीशन के लिए नहीं बुला रहे हैं या फिर आपको प्रोफेसर पोजीशन के लिए नहीं बुला रहे. वो आपको PhD पोजीशन के लिए बुला रहे. तो दे नो you have a little background, so they won't ask like very tough questions. Rather they ask
योर बेसिक्स थिंग, डेजर्टेशन किया तो उससे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, और जैसे जैसे आप आंसर्स बताओगे पूछेंगे। जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट बात है, सारे इंस्टीट्यूट का अपने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे आईआईएससी में अगर आप जाओगे ना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में, तो वो पक्का आपको ग्राफ बनवाने के लिए पूछते हैं। वो ग्राफ की बेसिक नॉलेज कोई भी बच्चा हो, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसकी इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, डेफिनेटली दे विल लाइक। न्यूरो साइंसेज में भी अगर आप जा रहे हो तो वो ग्राफ पक्का पूछते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट डेजर्टेशन, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, पूछेंगे ही। और न्यूरो साइंसेज में जा रहे हो तो क्यों जाना चाहते हो उसमें, ये पूछते हैं। अगर आपने बोला कि मुझे अल्जाइमर में इंटरेस्ट है, तो अल्जाइमर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे पहले। और जैसे एनसीसीएस पुणे की अगर मैं बात करूं, तो एनसीसीएस पुणे में क्या है कि उनके बहुत फेमिलियर क्वेश्चन आते हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन के, प्रोटीन लोकलाइजेशन के। तो कौन सी टेक्निक्स दे यू विल यूज टू फाइंड द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन लोकलाइजेशन, सच काइंड ऑफ थिंग। वैसे ही और भी, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं बता सकता हूँ, बट शायद लंबा हो जाए। तो हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना एक फेवरेट टॉपिक होता है जिसमें वो लोग पूछते हैं, थोड़ा अच्छे पूछते हैं। जैसे आरजीसीबी या फिर आप आईआईटी की बात करोगे, तो आईआईटी या फिर आईआईटीज जो होते हैं थोड़े डाइवर्स टाइप के ब्रांचेस होते हैं। तो पैनल में मतलब 3-4 डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग बैठे रहते हैं। लेकिन सीसीएमबी जैसी बात करोगे, सीसीएमबी बात करोगे, सीडीआरआई बात करोगे या सीडीएफडी बात करोगे, इन सारे इंस्टीट्यूट में एक ही टाइप के फैकल्टीज बैठे रहते हैं, तो उनका फेमिलियर क्वेश्चन होता है। लेकिन आईआईटीज़ में बहुत एक जैसा क्वेश्चन नहीं होता, वो कहीं से भी निचोड़ लेते हैं। दे विल लाइक, हाँ ठीक है, तुमने इसको तो बता दिया, मेरे क्वेश्चंस को बता के दिखाओ। फिर तीसरा कोई और उठ के पूछ लेगा। आप जैसे रेडिएशन कोई पूछ रहा है, रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ रहा है, आप बता रहे हो, फिर कोई पूछने लगेगा कि बताओ कि रिपोर्टर जीन क्या होता है। फिर जब आपने रिपोर्टर जीन बताया तो पूछेगा कि बताओ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है, बहुत सारे। तो आईआईटीज़ में थोड़ा सा आप अपने इंटरेस्ट को पक्का करके जाओ, और जो भी आप इंटरेस्ट है उसको अच्छे से बेसिक्स टेक्निक्स देख देख के जाओ। टेक्निक्स के लिए एक बुक है विल्सन वॉकर का, 400-500 पेजेस की है। सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपसे जो रिलेवेंट है वो 3-4 पढ़ के जाना इंटरव्यू में, और वही चीज़ें आप बोलना कि मुझे ये टेक्निक्स पसंद है, मतलब उससे रिलेटेड बोलना कि मुझे जैसे 3D स्ट्रक्चर पूछते हैं कि 3D स्ट्रक्चर और 2D स्ट्रक्चर अगर आपको पता करना है तो कौन से टेक्निक यूज़ करोगे प्रोटीन के लिए, तो आप बता दोगे। तो विल्सन वॉकर के टेक्निक्स को पढ़ के जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बार के एग्ज़ाम में किस यूनिट का वेटेज ज़्यादा होता है? तो बताओ सुमिलिया। हमारे फील्ड में सर हर यूनिट का नाम, पेशेंट वो क्या बोलते हैं, वेटेज होता है। यू कांट स्किप एनी यूनिट। आपको बस जो अपनी टॉपिक्स है उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, बस और कुछ नहीं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन बहुत, हाँ ठीक है, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे हैं ये लोग कि सी एस आई और जेआरएफ और बार कॉलेज जेआरएफ के बारे में क्या डिफरेंट है, सेम है, ये ऊपर पूछे 3-4 लोगों ने। इसका आंसर ऑलरेडी सुमिलिया ने बता दिया, फिर भी चाहो तो आप बता सकते हो। Yes, you are eligible for bar CS. Considering for general candidates, the age limit is 26 years on 1st of August. Like last year, I was not allowed to give bar CS exam because my age crossed
on 1st August by 24 days. अनफॉर्चुनेट एंड फॉर्चुनेट ऑल्सो, क्या फ़र्क पड़ता है बार्क में ही तो बट डेफिनेटली दे विल हैव Yeah. अ गुड प्रोजेक्ट एंड द गुड कनेक्शन, गाइड का कनेक्शन इट मस्ट, वो बना देता है। गाइड मतलब एक दूसरा बाप ही समझ लो या माँ समझ लो क्योंकि अच्छा मिल गया तो पार लगा देगा, बुरा मिल गया तो फिर डुबा देगा पानी में, तो है गाइड का इम्पोर्टेंस। प्राचीपन पूछ रही है कि सर ये तो हम लोग ने पढ़ा ना, हाँ सेफ साइड के लिए कौन से टॉपिक बोलने चाहिए इंटरव्यू में, ये तो हम लोग ने कर लिया। आर्यन का क्वेश्चन आपने देखा क्या? सर यू शेड केमिस्ट्री इज नेसेसरी एज ए सब्जेक्ट फॉर एलिजिबिलिटी बट इन द बार OCS 2026 brochure it is written MSc applicant should have studied one out of the physics or chemistry or biochemistry or agriculture chemistry as a subject at the BSc stage of the subsidiary ancillary level, and I have had a chemistry only, so am I eligible for the bar OCS? Already answered his question, by the way. अच्छा ठीक है, तो अब तो कोई क्वेश्चन रह नहीं रहा मुझे लग रहा है, आप देख रहे हो क्या, फॉलो कर रहे हो सारा? So can I ask you a question? ऑफ कोर्स। Yes, yes, go ahead. Actually, my master project was based on microbiology, which is for me. So It is fixed पे? microbiology. पे? My topic was microbiology. Cellulose, नहीं, मेरा भी cellulose producing enzyme. Cellulose producing bacteria. Yes, sir. क्या? Actually, I'm now trying to go for dry lab for bioinformatics. So there जाओ may be ना issue like in the interview. Okay. So actually, you said that the interview will be based on your dissertation or project. So, but I am planning to change my domain. So that's why I asked whether it would be an issue or not. ड्राई लैब कुछ नहीं होता। अब आज के जमाने में there is no ड्राई लैब, नो वेट लैब। वेट लैब वाले ड्राई लैब भी करते, ड्राई लैब वाले वेट लैब भी। Okay. कोई भी तो कोई भी पेपर बिना ड्राई लैब के पब्लिश नहीं होगा, कोई भी पेपर बिना वेट लैब के पब्लिश नहीं होगा। यू हैव टू कोलैबोरेट एंड गेट बोथ डन, देन ओनली आपका पेपर पब्लिश। Okay. Understood. And now Aryan question, these are very insider questions. So you will get to know once you join BRC. और तो है। एज क्राइटेरिया किसने पूछा, आपने बता दिया क्या? Age criteria for general candidate is again 26 years on 1st August. For OBC it is 29 years and for SC ST it is 31 years. ओके, सो वी आर वाइंडिंग अप। अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप रेज हैंड करके आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, बट वन बाय वन। विल वेट फॉर 1 मिनट। प्राची कुछ पूछना चाह रही है। प्राची पूछो। Yes, Mic on go करके ahead. पूछो। प्राची ने बहुत लंबे लंबे मैसेज किए, मतलब क्वेश्चंस, सो हम लोगों ने सही से आंसर नहीं किया, आई होप सो। सर इंटरव्यू जो है हमें सिंगल लैंग्वेज में देना होगा और फिर मतलब लाइक हम इंग्लिश यूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी हमें इंटरव्यू देना। They are comfortable with anything, but I would say try to talk in English. No. सर Yeah. एक और क्वेश्चन है कि लाइक जिसके पास ICM और JRF है तो वो क्या बार के JRF के लिए eligible? हाँ, जा सकते हो, कोई भी एक JRF एग्जामिनेशन में चाहिए आप BRC JRF का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। कोई भी JRF एक वैलिड JRF एग्जामिनेशन होगा। ओके सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन कि अगर किसी बच्चे को कोई हेल्थ हुआ है लाइक डायबिटीज या कोई, क्योंकि मैंने इस इंटरव्यू में लाइक लड़की जिसने बार कोर्सेज क्वालिफाई किया था कि
she was telling एक मेडिकल कराते हैं इंटरव्यू से पहले। तो मतलब कोई से बच्चे को प्रॉब्लम है या फिर मेंटल प्रॉब्लम है तो क्या पहले से इंटरव्यू में इन्फ्लुएंस होता है? इंटरव्यू में समझ गया। Since you are working with radiation, so it is generally said that you should be medically fit. अब आज के जमाने में चश्मा लगाना कोई that is not considered under medically unfit. हाँ, कुछ आपको कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। इट इज जस्ट अ नॉर्मल चेकअप जगह होता है। सर कोई ऐसा पर्टिकुलर ड्रेस कोड इंटरव्यू में या फिर मतलब इसके अलावा मतलब It should be इंटरव्यू के लिए कौन सी डेट हमें चूज करनी चाहिए क्योंकि उसमें एक मंथ पूरा टाइम देता है उसमें से कोई एक डेट चूज करनी होती है तो सर कुछ नहीं पहले उसने पहली डेट चूज की होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा जिसने दूसरी डेट चूज की उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू। आप कैसे अपना इंटरव्यू देते हो, कितना अच्छा आप इंटरव्यू देते हो, कितने अच्छे आंसर्स देते हो आप अपने क्वेश्चंस के, वो डिपेंड करता है। और रही बात ड्रेस कोड की, योर ड्रेस कोड शुड बी डिसेंट। वो चमक धमक पहनने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी वेरी डिसेंट नॉर्मल। और बहुत दैट्स ढीला इट। ढाला भी पहन के मत चले ओके जाना सर थैंक पैजामा यू सो ऐसा। मच सर। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि यार वो मतलब एक टी शर्ट एक पैजामा पे आ जाते हैं, बट ठीक है वैसे भी मत जाना। बट हाँ फॉर्मल रहे, डिसेंट रहे, ठीक रहता है। क्योंकि इम्प्रेशन बनता है, आप क्या पहन के जा रहे हो उससे इम्प्रेशन बनता है। I guess I can take a leave now because I'm already running late. I have to set up my experiment. Thank you a lot. You please, थैंक यू actually, सर। Possible? I request you to tell them about the SciComm क्योंकि that's really a helpful community. Like Yes. आने वाले टाइम में वो बहुत काम करेगी, अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। सो प्लीज़ SciComm के बारे में थोड़ा बताइए। So I guess I have. Is it visible to everyone? हम्म। So this is our website, and I have me and my senior. This we have started from last. We are working on this from last 4 years, and we started as a scientific community, but we changed the name and gradually we developed. I think voice is breaking. अरे क्या हो गया? मे बी आई थिंक Now we can. So unfortunately, uh, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। इफ़ यू कैन हियर मी सौमिल्या। मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। क्या हो गया? अभी तक तो सब सही चल so रहा था। your channel and this webinar professor as well. I request all of you please visit this SciComm community and U Biology and Abhishek Beta YouTube channel. You'll get a lot of information. In U Biology you'll get the notes। अभी सुमेलिया की आवाज़ बहुत कट रही है तो थोड़ा सा दिक्कत है।